Have you ever felt when a concept is being discussed in your class by a teacher that is very easy, I can do this very easily, but when you actually start doing the exercise, questions from exercises, you find them very challenging? I can feel your pain. So after discussing all the concepts from polynomials, I have decided to do exercise 8b along with you. I have chosen few of the questions from exercise 8b that we are going to discuss and do it right now. Students, welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita and I firmly believe that we should keep trying until we get it right. So let's start our trial for today. We'll start with exercise 8b, question number 1, where it is saying if a is equal to 2, b equal to 3, find the value of, question number 5 is 5a square minus 2ab. Okay. So what we have to do here, हमें substitute करना है value of a and b in this expression. So 5, a के जगह हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है. मैं इसे ब्रैकेट्स के अंदर लिख रही हूँ. टू पुट अ स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2, ऊपर लिखूंगी ब्रैकेट के, इसलिए मैं 2 को ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ. ए के जगह पर 2 लिख दिया. नाउ हियर माइनस दी के 2 लिख दिया एज इट इज़. यहाँ पर ए है, अब ए का वैल्यू क्या है 2, आई राइट इट हियर, और बी का वैल्यू क्या है 3, आई सब्सटीट्यूट इट हियर. ओके, हो गया हमारा सब्सटीट्यूशन. नाउ आई मूव टू स्टार्ट सॉल्विंग इट. 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब 4, राइट. सो हियर हमें क्या मिलता है 5 इंटू 4, राइट. 5 इंटू 4 एंड दिस बिकम्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12. सो आई राइट द वैल्यू ऑफ 12 हियर. देन आई स्टार्ट 5 इंटू 4 इज 20, 20 माइनस 12, राइट. 20 minus 12 is 8. So the answer of question number 1, 5 is 8. We'll move to question number 6. Moving to question number 1, 6. A cube minus B cube. A cube we know is A multiplied to itself how many times? 3 times. मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cube और B के जगह पर हम लिख सकते हैं 3 cube, और उसको फिर इसके बाद हम लोग उसका कैलकुलेट करेंगे. 2 cube हमें पता है 2 multiplied to itself 3 times, मतलब 2 into 2 into 2. 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8. ऐसे ही 3 cube कितना होगा, 3 into 3 is 9, 9 3s are 27, right. So now we have to do 8 minus 27. अभी अनलाइक है, राइट. ये इधर प्लस साइन है, इधर माइनस साइन है, तो क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस. जब अनलाइक साइन होते हैं इंटीजर्स में, वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस. तो 27 माइनस 8, तो 17 माइनस 8 करना पड़ेगा, 9 आ गया एंड 1 बच गया है 19, राइट. और इधर हम माइनस साइन देंगे, क्यों, बिकॉज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 27 इज ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8. इंटीजर सब्सट्रैक्शन. So the value for question number 1, 6 is minus 19. So I have taken question number 2, 4. If you have any doubt in any other question that I am leaving out, please let me know in the comment section. I will be more than happy to help you. So question number 2 is saying if x equal to 1, y equal to 2, z equal to 5, find the value of this particular expression. हमें करना क्या है, very simple, we just have to substitute the value. तो first x और y का value 1, x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है, अगर मैं ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे लिखती हूँ, इट जस्ट मीन्स दिस ओनली. अगर इस तरह से ब्रैकेट में कुछ लिखा है, इट मीन्स दिस ओनली, 1 into 2. ओके. इन केस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वी जनरली राइट लाइक दिस. वैल्यूज जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना वेरिएबल्स की जगह पर, जनरली हम वी राइट दम विद इन ब्रैकेट्स, बिकॉज समटाइम्स y का वैल्यू या फिर x का वैल्यू इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, इट कुड बी अ नेगेटिव इंटीजर. -2 हो सकता है, -3, कुछ भी हो सकता है. जब हम ब्रैकेट्स दे देते हैं सॉल्व करते वक्त, वी जनरली एलिमिनेट एनी कॉज ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. सो ऐसे लिख दिया विद इन ब्रैकेट्स. अब y और z पे चलते हैं. y z अगेन 2 को मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी, z का वैल्यू 5 ब्रैकेट के अंदर, माइनस zx, 5 अगेन गोज विद इन ब्रैकेट, एंड देन x का वैल्यू क्या है 1. So I write like this. I'll erase this thing here just to avoid any kind of confusion. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. I am not attempting all the questions because I firmly believe that you should be the one who should be doing it. If you have any doubts, please let me know in the comment section.
सो 1 इंटू 2 2 हो गया. नाउ प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा. 2 इंटू 5 इज 10. माइनस साइन एज इट इज नीचे आ जाएगा. 5 इंटू 1 इज 5. हो गया यहाँ तक. अब हमें 2 प्लस 10 कर लेना है. 12 2 प्लस 10 इज 12. माइनस 5 इज 7. ये तो हमें पता ही है. द क्वेश्चन 4 आंसर इज 7. Now moving to question number 5. 5 थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है बट डजेंट मैटर, वी कैन डू इट. 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मतलब 1 विद इन ब्रैकेट्स, ऊपर में पावर दे दूंगी 2 का बिकॉज इज 1 स्क्वायर. उसके बाद y का वैल्यू 2. सिंपली हम फर्स्ट जो स्टेप लेंगे वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे वैल्यूज. -5 एज इट इज लिख दिया. y का वैल्यू है 2. z का वैल्यू है 5. Now plus xy square. X is 1 and y square is 2 to the power of 2, right? So now let's do this. ये हो गया 1 into 2 कितना है? 2 ही होता है. So I have 2 into 2 over here, right? मैं पूरे को ब्रैकेट में डाल देती हूँ. इधर माइनस साइन. 5 2s are 10. 10 5s are 50. 50 को पूरा मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देती हूँ. प्लस 1 2 2s are 4. 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 स्क्वायर. 2 2s are 4. 4 इंटू 1 इज 4. सो ये हो गया 4 माइनस 50 प्लस 4. अब जो हम ऐड कर सकते हैं पहले उन्हें ऐड कर लेते हैं. 4 और 4 ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. सो आई ऐड देम. 4 प्लस 4 इज 8. रह गया -50. नाउ वी हैव गॉट 2 इंटीजर्स विथ ऑपोजिट साइंस. ये इधर -50 है, ये +8 है. इधर क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन. सो 10 - 2 इज 8. बोरो कर लिया था तो इधर 5 के जगह पर 4 है. सो आंसर में आ गया 42, राइट? सो 42. और एब्सोल्यूट वैल्यू किसका बड़ा है? 50 का या 8 का? 50 का. 50 के आगे कौन सा साइन लगा है? माइनस साइन. सो ये इंटीजर अगर हम इंटीजर अच्छे से जानते हैं तो ये वाला अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. ये हो जाएगा -42 बिकॉज 50 वैल्यू इज बिगर एंड इट हैज़ गॉट अ माइनस साइन बिफोर इट. सो इट इज़ -42 इन द आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2-6. इट्स सेइंग x³ - y³ - z³. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. 1 इज x वैल्यू इज 1, सो आई पुट इट हियर 1³. y's value is 2, so I write within brackets 2 and put the cube above it. माइनस और साइन एज इट इज लिख देती हूँ और 5 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ. ऊपर जो क्यूब है z के ऊपर वो 5 के ऊपर अब आ जाएगा क्यूब. अब हम उसको सॉल्व करते हैं. सो ये क्या हो जाता है? 1³ इज 1 इंटू 1 इंटू 1. 1 मल्टीप्लाइड इट टू इट सेल्फ 3 टाइम्स. 1 जितना भी टाइम मल्टीप्लाइड हो आंसर 1 आएगा. 2 मल्टीप्लाइड विथ इट सेल्फ 3 टाइम्स. 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 cube is 2 into 2 into 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8. यहाँ पर आ जाएगा 8. अब हम सिमिलरली 5³ को इधर सॉल्व कर देते हैं. 5³ is 5 into 5 into 5. 5 5s are 25. 25 5s are 125. अगर इस तरह से सॉल्व करने में मुश्किल हो रहा है 25 इंटू 5 लिख के भी कर सकते हैं. 5 5s are 5, 5 2s are 10. 2 हुआ था कैरी ओवर, सो 12 हो गया. 125 आ गया. सो आई पुट द 125 हियर. नाउ आई हैव टू सी. यहाँ पर देखिए -8 और -125 दोनों का साइन सेम है, नेगेटिव है. तो जब दोनों का साइन नेगेटिव एक ही है, या तो माइनस हो या तो प्लस हो, दो इंटीजर्स का, देन वी नीड टू ऐड देम. ठीक है. ऐड करने से क्या होगा? 125 में अगर मैं 8 ऐड करती हूँ, आई विल ऐड इट हियर. 8 ऐड करूँगी तो कितना आएगा? 8 + 5 इज 13. 3 एंड ये 1 आ जाएगा. सो 133 पर यहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन है तो एज इट इज़ मैं नेगेटिव साइन दे दूँगी आंसर में. इफ़ यू नो द इंटीजर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन प्रॉपरली तो यहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं होगा. सेम साइन. सो हमने ऐड करके नेगेटिव साइन एज इट इज़ दे दिया.
जो साइन था दोनों के पहले. सो नाउ वी हैव टू डू दिस सब्सट्रैक्शन. क्योंकि यहाँ पे +1 है, ये माइनस नेगेटिव इंटीजर है, -133 है. सब्सट्रैक्शन करने से कितना आएगा? 133 - 1 इज़ 132. मैं एज इट इज़ लिख दूंगी. नाउ विच हैज़ गॉट बिगर वैल्यू? 133. व्हाट इज़ द साइन बिफोर इट? माइनस साइन. सो आंसर में मेरा माइनस साइन ही आएगा. सो दिस इज़ द फाइनल वैल्यू फॉर क्वेश्चन नंबर 26 -132. Now moving to question number 4, which is asking us to write the coefficient. We have already discussed all the algebraic terms in our previous video. If you haven't watched it or you have some doubts in it, please go through the video yet again. मैं description में दे दूँगी video link. You can watch and go through it again to understand the meaning of coefficient. But again I am explaining here. See, I have taken question number 4 to y in -5. इसका coefficient, y का coefficient हमें बताना होगा. y के साथ क्या मल्टीप्लाइड किया गया है? -5. सो इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक y है, एक -5 है. सो y का अगर हमें कोफिशिएंट पूछेंगे तो -5 निकलेगा. दूसरा जो कुछ भी है फैक्टर्स y के साथ वो बन जाएगा कोफिशिएंट. यहाँ पर सिर्फ -5 है, एक नेगेटिव इंटीजर है. आई कैन नॉट लीव आउट दिस माइनस बिकॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये नेगेटिव इंटीजर है. सो यही है कोफिशिएंट ऑफ y in -5y. हो गया क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग a in 6ab. a का कोफिशिएंट क्या है? a इज मल्टीप्लाइड टू 6 एंड b. यहाँ पर क्वेश्चन में दो लिटरल फैक्टर्स हैं. ये जो टर्म है 6ab में दो लिटरल फैक्टर्स हैं या फिर दो वेरिएबल्स हैं a और b, और एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, अब न्यूमेरिकल फैक्टर है 6. तो a के अलावा दो और हैं 6 और b. सो a का कोफिशिएंट क्या बनेगा? हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा गया होता तो हम सिर्फ 6 लिखते, बट यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं, ओनली द वर्ड दैट हैज़ बीन यूज्ड इज कोफिशिएंट. तो हमें b को भी आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा. सो कोफिशिएंट ऑफ a in 6ab इज 6b. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. z in -7xz. z का कोफिशिएंट क्या है? -7x, बिकॉज -7 और x और जो अलग फैक्टर्स हैं अदर देन z इन दिस टर्म, सो वो दोनों बन जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ z. सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज -7x. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, x³ in x³. अब x³ में क्या कोफिशिएंट है हमें उसको बताना है. यू नो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद करो. 1 मल्टीप्लाइड विथ एनी इंटीजर विल गिव दैट इंटीजर आंसर में. मतलब 1 अगर मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो आंसर में x आएगा. x का वैल्यू अगर मैं सपोज 9 लूँ, 1 to 9 इज 9. अभी यहाँ पर x³ लिखा हुआ है. x³ मतलब ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही रूल अप्लाई करूँ तो 1 into x³ इज x³. सो x³ के अलावा कौन सा कोफिशिएंट, कौन सा फैक्टर उसके साथ है? 1 है. सो 1 बीइंग द अदर फैक्टर विथ x³, द कोफिशिएंट ऑफ x³ in x³ विल बी 1. आई होप आई एम क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4, 7, द अदर फैक्टर दैट इज विथ x³ is 1. So 1 is the answer. Now moving to question number 8, x² in -x². I'll erase this part. Just multiplicative identity अगर हम समझ ले then we can understand the answer for question number 7. यहाँ पर -x² में क्या क्या फैक्टर्स हैं? -x² में क्या क्या फैक्टर्स हैं? -1 if we multiply with x², will we not get -x²? So there are two factors, -1 or x². So coefficient of x² and -x² will be -1, right? This is the coefficient of -x². So end of question number 8. Now let's move to question number 5. Write the numerical coefficient जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है 7xyz. अब उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वही होगा जो न्यूमेरिकल फैक्टर है. न्यूमेरिकल फैक्टर इसमें क्या है? 7 है
So 7 is the answer. Okay, so now moving to question number 4. 4 में हमें again -2x square y square z दिया गया है. Here we have to again check at the numerical factor to understand the numerical coefficient. यहाँ पर क्या है, -2 is the numerical factor. हम माइनस को नहीं भूल सकते, इट्स अ नेगेटिव इंटीजर, सो ये माइनस उसके साथ आंसर में आएगा ही. सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ -2x square y square z is -2. Fine. Question number 5 we have completed. Now moving to question number 6, it is asking to write the constant term of following expressions. Now let's do a brief recap on constant terms. Constant terms are those terms which have no literal factors multiplied to it. Let's understand. Question number 6(2) has two terms, 2x square and -9. So this 2x square has a literal factor x square multiplied with 2. So this is not a constant term because a variable or literal factor x square is already there in this term. Now what about -9? -9 has got no literal factor multiplied to it. So the answer for question number 6(2) is -9. Now let's move to the next question. Question number 4, it has given a huge algebraic expression. Now asked us the constant term here. See, यहाँ पर -8/3 is there. And this is a fraction, doesn't matter if it's a fraction or a decimal or a negative integer or a positive integer. If there is no literal factor multiplied to it, then it is a constant term. यहाँ fraction भले ही हो, but यहाँ पर कोई constant, this literal factor is not multiplied. So this is a constant term. -8/3 is the answer for question number 6, 4. In the next video, we will attempt question number 7, 8 and 9 of exercise 8b. And then we will move forward to do the other topics from algebraic expression. So if you are liking my channel, please then like, share and subscribe to Sri Siddhi Academics. Thank you.